15 से 20 दिन का बेसिक सीखने के बाद में स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग इंग्लिश थोड़ी थोड़ी बोलने लग गए हैं लेकिन अभी भी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह और आज के इस वीडियो लेसन में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बीच में बैलेंस को एस्टैब्लिश करना है। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द पॉसिबल थिंग्स व्हिच आर वेरी मच रिक्वायर्ड टू बैलेंस अमंग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सो वॉच द वीडियो टिल एंड एंड आई गारंटी यू दिस वीडियो is going to be very much beneficial for all those students who are able to speak English but not correctly. So let's start the video. स्टूडेंट्स, बोर्ड पर आप लोग देखिए, यहां पर बोर्ड पर आपको दिया है 3 कॉलम। पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा है आपका पास्ट टेंस और तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। अब आप यहां पर आप अगर देखें ध्यान से तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस 3 टेंसेस इंडिविजुअल आपके लिखे हुए हैं। अब आपको सबसे पहली चीज जो आपको क्लियर करना है कि जब आप कोई भी चीज प्रेजेंट में बोलते हैं तो उसका बोलने का तरीका क्या होता है। देखिए, मैं आपको प्रेजेंट टेंस में एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू डू डेली, आप डेली क्या करते हैं, तो आपका जो आंसर होगा, जो आंसर विल बी इन प्रेजेंट टेंस, यू वुड से V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आप जो भी आंसर करेंगे वो इस स्ट्रक्चर में करेंगे। आप कहेंगे मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं, स्पीक इंग्लिश, मैं समझता हूं, अंडरस्टैंड। आप क्या क्या करते हैं, whatever you do from morning to till night, whatever work you do, you have to speak in your own words by using present simple tense, right? On the other hand, when you use past tense, so you should know कि इसको यूज कहाँ करना है। इसके लिए जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है what you did yesterday, what you did yesterday. If I ask you what you did yesterday, you have to speak in your own words. So you have to use this specific structure, subject V2 plus object. So here you need to balance between present and past. You need to think about twice that when you speak in present tense, you say I do, I come, I understand, I go, and here when you speak about the past, you directly go in past tense. You have to start saying like yesterday I went there, I watched a movie, I met my friends, you know. So in your brain you have to balance between present and past, because students are very much confused between present and past, right? So first you need to balance between these 2 tense and then you have to jump on future. Later on I will explain you about the future, but first we need to learn how to balance between present tense and past tense. And not only in this particular specific this answer, everywhere I have seen, after learning 15 to 20 days classes, after attending 15 to 20 days classes, I have seen students are very much confused when they speak. Even in the live classes I have seen when students say, when I ask them that tell me what you did yesterday, so there is a specific pattern that they follow by using simple past tense that started speaking, but they do not use another structures. In the past we have many structures, like we use these structures too, okay, we use that structure too, we use also this structure could, okay. So we need to use all these structures. Actually we need to use all the possible structures that is the required of that particular sentence, but we don't use it. Like you are speaking that yesterday what happened, I was busy at my home, so I couldn't attend my online class, therefore I messaged my teacher that sir, I won't be able to attend today's class, so please forgive me, I will attend your class from tomorrow. That message I sent to my teacher, then my teacher replied me it's okay, right? So आप ये जो भी कंटेंट बोल रहे हो, whatever you are speaking in past, ओके। सो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एक स्पेशल टेंस को ही लेकर उसी को बोल रहे हो। यू हैव टू यूज ऑल द पॉसिबल टेंसेस, जितने भी आप यूज कर सकते हो पास्ट के, वो सारे आप लेकर चले। ऐसे ही जब आप प्रेजेंट में बोलते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू डू डेली, तो आपको कोई इसी का यूज नहीं करना है। इसके अलावा भी आप कुछ और भी लाइक कर सकते हैं। जैसे आप कर सकते हैं कि दीज डेज आई एम एट माई होम, इन दिनों मैं अपने घर पर हूँ, सो आई डोंट डू एनीथिंग स्पेशल ड्यू टू लॉकडाउन, due to COVID-19 I'm at my home, I don't do anything special, I attend my online class, sometimes I help my mother in kitchen, I watch TV, I watch web series, so in a practical way you have to speak. When you speak in practical way, it sounds great.
And when you speak the things which is prepared, it doesn't sound great. One can easily judge that you are speaking these things which is prepared. You know, so prepared की हुई चीज़ों को मत बोलिए आप लोग। रैंडमली आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आइडियाज आना चाहिए कि मुझे कैसे बोलना है, क्या बोलना है। तो जितने भी चीज़ें प्रेजेंट टेंस में आ रही है, जैसे कुड की जगह आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो कैन करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद जो भी चीज़ आपके पास है उसके लिए, नाउ दीज डेज आई हैव मच टाइम, दैट इज़ व्हाई आई एम अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस। ये देखो, आई एम अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज आई हैव मच टाइम। यू कैन यूज दिस स्ट्रक्चर, यू नो। सो आप ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं यूज करें। आप बोले कि आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, सो नाउ आई एम डूइंग प्रिपरेशन फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएशन। I have completed my graduation, so I am doing preparation for banking exam, entrance exam, you know. So use all these structures which are the part of it, right? So the first step which is required to balance between present and past is to know the difference between these two tenses. And this is the difference actually. You can see the visible differences of a structure. Here we are using ismr, so here we are using was were. Here we are using can, so here we are using could. Here we are using has here, so here we are using had. Right? Had, for this we have this structure actually. Right? So you can see this visible difference between present tense and past tense. ये जो differences आ रहा है सिर्फ आ रहा है helping verb का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग को helping verb की सही समझ है, if you know how to use correct helping on the correct place, so you can easily speak it. राइट तो इस चीज को आप सबसे पहले समझिए कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बीच में कैसे मुझे बैलेंस को एस्टैब्लिश करना है। क्योंकि हम लोग भी यहाँ क्लासरूम में जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना, तो उनको यही टेक्निक बताते हैं कि आप लोग सबसे पहले प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बीच में बैलेंस को एस्टैब्लिश करना स्टार्ट करिए। और उससे पहले तो अगर आप न्यू लर्नर है, 15-20 डेज की क्लास आपने अटेंड करी है और 15-20 दिन से आप मेरे वीडियोस देख भी रहे हैं और नहीं भी देखे हैं, तो हम लोगों ने पूरे इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बनाई है। आप सभी को अच्छे से पता है, अगर नहीं पता तो आपको बता दूं कि आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करें और उसमें जितने भी न्यू वीडियोज है, स्पेशली फर्स्ट डे से सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। उसमें प्लेलिस्ट आपको मिलेगी बेसिक फॉर न्यू स्टूडेंट्स की, उसमें प्लेलिस्ट मिलेगी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, उसमें प्लेलिस्ट आपको मिलेगी 10 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज की जिसकी लाइव क्लासेस मैंने ली थी, उसमें प्लेलिस्ट आपको मिलेगी सीजन 2 लाइव क्लासेस की, उसमें प्लेलिस्ट मिलेगी आपको सीजन 1 लाइव क्लासेस की, उसमें प्लेलिस्ट मिलेगी आपको जीडीएन ग्रुप डिस्कशन पर बेस्ड वीडियोस की। सो वी हैव एक्चुअली कैटेगराइज्ड ऑल द वीडियोस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट, राइट। तो कंटेंट पर बेसिस जो भी मतलब कंटेंट उनके अंदर है उनके बेसिस पर हम लोगों ने उनको कैटेगराइज किया है और आपको उसमें देखना है प्लेलिस्ट में कि आपके लिए कौन सी प्लेलिस्ट ज़्यादा अच्छी है। प्रैक्टिस पर बेस्ड 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, तो ये सारी प्लेलिस्ट को आप देखें और उसके बाद में जब आप सिस्टमेटिक तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, अब रूटीन में चीज़ों के रहेंगे, गाइस ट्रस्ट मी यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड। क्योंकि एक सही स्ट्रैटेजी और एक सही प्लानिंग के साथ में जब हम काम करते हैं तो हमें वो रिजल्ट मिलता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम चाहते हैं। और पर्सोना इंस्टीट्यूट की पूरी टीम जो है वो उन सारे कंसेप्ट पे वर्क कर रही है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूचर टेंस। अब आपको फ्यूचर टेंस को कैसे बोलना है, तो आप एक चीज तो आज अपने दिमाग में स्टूडेंट्स क्लियर कर ले कि फ्यूचर टेंस हमेशा बोला जाता है विल और शैल की हेल्प से। आप लोग अच्छे से इस चीज को दिमाग में फिट कर लें कि बाय यूजिंग विल एंड शैल वी हैव टू यूज फ्यूचर टेंस। लेकिन जनरली इन स्पोकन वी डोंट यूज शैल, सो यू कैन डायरेक्टली से कि विल का यूज होता है मतलब फ्यूचर टेंस है, राइट। तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया फ्यूचर टेंस के लिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, नाउ टुडे इज संडे फॉर एग्जांपल एंड टुमारो विल बी मंडे, सो व्हाट यू विल डू टुमारो, व्हाट्स योर प्लानिंग फॉर टुमारो, सो यू हैव टू डायरेक्टली से दैट टुमारो विल बी संडे, सो टुमारो विल बी मंडे, सो आई विल वेक अप as usual in the morning, then I will get ready to go to school, college, university, church, temple, whatever, wherever you have to go, you have to speak, right? So automatic आपको बोलते हुए आना चाहिए कि I will do this work, I will go there, I will learn English, I will speak English, I will help my friends, I will do this work, you know. So आप जब इस तरीके से सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से बोलेंगे, trust me guys, you can actually learn how to speak English correctly. And that's the technique of Persona Institute and that is the USP of Persona Institute. आज हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं इंस्टीट्यूट पर पढ़ने के लिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यू वोंट बिलीव दैट दे आर फ्रॉम हिंदी मीडियम एंड वी मेक स्पीक इंग्लिश टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट विच इज द टफेस्ट टास्क इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे कठिन काम होता है उस स्टूडेंट से हिंदी इंग्लिश बुलवाना जो कि हिंदी मीडियम का है, मराठी मीडियम का, गुजराती मीडियम का है और उसने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ते भी नहीं आता, उसको इंग्लिश बोलना सिखाना। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम स्कूल से जिनको थोड़ा बहुत पहले से बोलते आ रहा है, इट्स वेरी इजी टू मेक देम स्पीक इंग्लिश,
राइट लेकिन उन स्टूडेंट से इंग्लिश बुलवाना जो कि हिंदी मीडियम से बहुत बड़ी टास्क होती है। तो हम ये सारी टेक्निक को यूज करते हैं, वी यूज ऑल दिस टेक्निक्स टू मेक द स्टूडेंट्स स्पीक, राइट। अब आप देखो जब फ्यूचर टेंस को आप यूज करते हैं तो फ्यूचर टेंस में आपको क्या करना होता है, फ्यूचर टेंस में आपको बोलना होता है कि आई विल डू दिस वर्क, आई विल डू दैट वर्क। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर आपका ये भी होता है, विल के साथ बी लगकर ऑब्जेक्ट आ जाता है। एक स्ट्रक्चर आपका विल बी प्लस आईएनजी वाला भी होता है। अच्छा ये कहाँ यूज होता है विल बी आईएनजी वाला? टुमारो विल बी योर बर्थडे, सो यू वुड से I will be cutting cake on this time tomorrow, I will be enjoying, I will be doing my work. Okay, if you attend this seminar, you will be listening to the great speaker. अगर आप ये सेमिनार को अटेंड करोगे तो आप एक अच्छे स्पीकर्स को सुन रहे होंगे, means the work that you will be doing in future. For that we use this structure, right? तो एक टेंस की अपनी समझ को भी डेवलप करो, आपके करेक्ट टेंस हम करेक्ट जगह पर ऑटोमेटिक बोल पाए। क्योंकि मैंने देखा ना स्टूडेंट्स को टेंसेस सारे आ जाते हैं। अगर मैं पूछूं कि चलो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बताओ, दे कैन इजीली स्पीक कि सर सब्जेक्ट विल बी वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बट टेल मी आर यू एबल टू यूज दिस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इन योर स्पोकन? द आंसर विल बी नो। व्हाई? अरे जब ये आपने टेंसेस को पढ़ा है तो यू शुड बी एबल टू यूज इट, व्हाई यू आर अनएबल टू यूज इट? तो रीजन कहां जा रहा है? रीजन सिर्फ यही हो रहा है, वी आर नॉट वेल प्रैक्टिस्ड, वी डोंट नो हाउ टू बैलेंस अमंग प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, right? So on the board you can see, you can take even a screenshot, you will find the visible difference कि आपको इज़मार, कैन, हैज़ो, इज़मार, हैज़ो ये सब प्रेजेंट टेंस में होता है, was were, had, could ये सब पास्ट टेंस में होता है, will be and will have you can say, you know, will have been, ये सारे के सारे uses जो होते हैं आपके फ्यूचर टेंस में होते हैं। And when you learn the correct use of correct helping verb on correct place, trust me, you will speak correct English, right? So just apply this technique that I have explained you right now. After watching this video, first like my video and start practicing in the way as I have taught you today. Just practice the present tense first. Do the work that you do daily by using all these structures, right? Do the work, speak the sentences that you did, speak the work that you did yesterday by using all these structures, and speak the work that you will do tomorrow by using all these structures. Use all these structures, not a particular sentence or particular tense, क्योंकि एक टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हम जब बातचीत करते हैं, मुझे बताइए, टेल मी वन थिंग, इन आवर नेटिव लैंग्वेज डू वी एवर थिंक दैट आई एम टॉकिंग इन दिस पर्टिकुलर टेंस? वी नेवर थिंक. Why? Because in our native language we know exactly how to use correct tense on a correct place. Even we use varieties of sentences, but in English we don't do so. Why? Because we don't know the correct pattern to speak it. That is why we are unable to speak. So students, I suggest to all my viewers and subscribers, those who are watching this video, guys, start practicing from today. And do not think about your mistakes. In my every video, I just mentioned the point that do not think about your mistakes. Because when you think about your mistakes actually overcome on you. And you start thinking, यार मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें अपने दिमाग से आप निकाल कर फेंकिए, अपने आप को अच्छे से अच्छा इंप्रूव कीजिए। मेरी दुआएं, मेरी विशेस आपके साथ हैं। आई गारंटी कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपकी छोटी सी हेल्प कर पाया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में, कुछ नया कंटेंट लेकर। टाटा बाय, हैव अ गुड डे।